ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا جن بے قابو۔ ملتان شہر میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ٹماٹر کی قیمت 20 روپے فی کلو سے بڑھ کر 120 روپے تک پہنچ گئی۔ ادرک کی قیمت 320 روپے، لہسن 300 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے سہیرا طارق سے۔ سہیرا، کہیے گا کتنا اضافہ ہوا ہے سبزیوں کی قیمتوں میں؟ ملتان شہر میں ایک بار پھر سے سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ موسمی سبزیاں ان کی قیمتوں میں اچانک سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عام ہانڈی میں استعمال کیا جانے والا ٹماٹر جو ہے اس کا ریٹ 20 روپے سے بڑھ کر 120 روپے تک جا پہنچا ہے، جو کہ عام آدمی کے لیے خریدنا مشکل ہے۔ اچانک سے ٹماٹر کے ریٹ میں 100 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ باقی سبزیوں کی کیا صورتحال ہے اور کیا ریٹ ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کیا ریٹ چل رہے ہیں اور ٹماٹر اور دوسری سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ 100 روپے کلو ہے، ادرک 80 روپے پاؤ ہے، لہسن 50 روپے پاؤ ہے، پیاز 40 روپے کلو ہے، آلو 50 روپے کلو ہے، نیمبو 30 روپے۔ ٹماٹر کا ریٹ ایک دم سے کیوں بڑھ گیا ہے؟ یہ بھاجی پیچھے سے اب گرمی جو پڑی ہے نا، پہلے سڑکیں پیچھے تیز ہو گیا، جب پیچھے تیز ہو گیا تو ہم بھی آگے ریٹ بڑھانا پڑا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سہیرا طارق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا۔ روہی کی خبر پر ایکشن۔ بہاولپور ضلعی انتظامیہ نے آٹا مہنگا ہونے کا نوٹس لے لیا۔ 7 فلور ملز کو آٹا مہنگا ہونے پر نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمود ظہیر۔ جی، آٹا ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، اور روٹی تو ہر انسان نے کھانی ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، لیکن جب یہ آٹا مہنگا ہوتا ہے تو غریب کے گھر پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور غریب کی جیب پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور اس کا نوٹس لیا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بہاولپور شاہد عمران مار صاحب نے۔ کیا نوٹس لیا ہے جانتے ہیں انہی سے۔ سر ذرا بتائیے گا، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، آپ تو امیر لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تو شاید فرق نہیں پڑتا ہو، غریب لوگوں کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں، ان روٹی نہیں کھا پاتے ہیں، آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ وہ کیا ایکشن لیا؟ تھینک یو ویری مچ۔ جس پہ ہم نے 7 فلور ملوں کو جو ہے نا وہ شو کاز کیا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ڈی ایف سی انکوائری کر رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو گندم دی گئی ہے وہ اس کی پراپر گرائنڈنگ نہیں ہوئی، کہ آگے جو ہے جہاں پہ نوٹیفائڈ جو ان کے سیل پوائنٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کو نہیں بھیجا۔ تو اے سی سٹی اور صدر نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں چیزیں، تو وہ اس پہ ہم نے جو ہے وہ ان کو شو کاز کیا ہے، اور اگلے 2-3 دنوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ ہم ایکشن لے لیں گے۔ تو سر جب یہ آٹا مہنگا ہونے کا نوٹس لے لیا ہے۔ محمود ظہیر آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں مہنگی چینی خریدنے کا سستے داموں سرکاری نرخ پر فروخت کرنے کا معاملہ۔ ضلعی کریانہ ایسوسی ایشن نے شوگر مل سے چینی کی خریداری بند کر دی۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم، کہیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر یوٹیلٹی سٹور میں؟ جی، رحیم یار خان میں چینی کا بحران سر اٹھانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے 70 روپے کلو میں چینی فروخت کرنے کا کہا جا رہا ہے، جبکہ ملوں کی جانب سے 79 روپے فی کلو میں چینی فروخت کی جا رہی ہے، اور کریانہ ایسوسی ایشن نے چینی کی خریداری کو بند کر دیا ہے۔ صدر ہے کریانہ ایسوسی ایشن کے چودھری فلک شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پھر صاحب، آپ نے خریداری بند کر دی ہے تو عوام کو چینی کیسے ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چینی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 70 روپے کلو مارکیٹ میں چینی بیچو۔ ہم چینی 78 یا 79 مل سے لے کے کیسے چینی ہم کم کر کے ہمارا چھوٹا دکاندار بیچ سکتا ہے؟ جب ہمیں 80 روپے کلو تک چینی گھر پہنچ ملے گی، ہم کیسے اس کو بیچیں گے؟ لہٰذا ہمیں انتظامیہ کی طرف جو فورس کیا جا رہا تھا کہ آپ 70 روپے کلو چینی بیچیں، ہم 70 روپے نہیں بیچ سکتے۔ اس لیے ہم نے ضلعی لیول پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چینی کی لوڈنگ نہیں لیں گے، چینی نہیں منگائیں گے۔ جب چینی مارکیٹ میں 1-2 دن کا سٹاک ہے وہ بک جائے گا، اس کے بعد چینی کی مارکیٹ میں شارٹیج آ جائے گی۔ لہٰذا میں بحیثیت صدر کریانہ ایسوسی ایشن ضلع رحیم یار خان اپنی انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اس بحران سے بچنے کے لیے ملوں سے ہمیں چینی 67, 68 تک لے کے دیں، تاکہ مارکیٹ میں بحران پیدا نہ ہو اور مارکیٹ میں چینی 70 روپے کلو بک سکے۔ اس طرح کوئی بھی چینی من مانی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہے۔ بیورو چیف عاصم صدیق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میاوالی ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر کا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ضلع بھر میں حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ فلور ملز کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ کرنے اور تیار کردہ آٹے کی مارکیٹ میں سپلائی کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت، سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار عروج پر ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے رضا ملک سے۔ رضا، بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ قیمتوں کے حوالے سے؟ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی منڈی مویشیاں میں اس وقت جو کاروبار ہے وہ
शदीद तेजी है उसमें, और हजारों जानवरों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जनूबी पंजाब का दिल मुल्तान में जो सबसे बड़ी मंडी मवेशी है, वहां से सवात, चमन, क्वेटा, गोजरावाला, कराची के लिए जो जानवरों की खरीदो फरोख्त है वो जारी है। बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं जिन पर जो है माल जो है वो लोड किया जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग का सिलसिला जारी है। हब्स गर्मी शदीद है, और जबकि मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से जो इंतजामात हैं वो इंतहाई नाकाफी हैं। किसी किस्म के जो इंतजामात हैं वो देखने में नहीं आ रहे हैं। बेबस हो गया मुल्तान कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी का जो अमला है वो भी। हाँ जी, क्या सूरत हाल है, कितने पैसे लगते पेन? भाई जान पैसे एक तो घट लगते पेन, पानी कहीं नहीं, जानवर मरदे कई हराम थी गए, मर गए पानी की वजह तू 350 400 पर्ची का गिन गिन पानी है कहे ना। हाँ जी, क्या तो सहूलियात भी नाकाफी हैं और जानवरों की कीमतें ज्यादा हैं। रजा मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान में कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के लिए फलाही इदारों और NGOs को ज़िला इंतजामिया से इजाजत लेना होगी। इजाजत लेने के लिए 20 तारीख तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। इस हवाले से ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक अपडेट कर रहे हैं। ईद उल अजहा पर जो फलाही अदारे और तंजीमें कुर्बानी की खालें इकट्ठी करना चाहते हैं उनको ज़िला इंतजामिया से इजाज़त लेनी होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जानजेब हुसैन लाबर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या SOPs बनाए गए हैं, किस तरह लोग दरखास्तें देंगे और कब तक ये दरखास्तें वसूल की जाएंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरखास्तें देने और वसूल करने का तरीक़ाकार वही पुराना ही है। इसमें जो इदारे या NGOs इंटरेस्टेड होंगी खालें इकट्ठी करने में, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरखास्तें देंगी। दरखास्तें 20 जुलाई तक दी जा सकेंगी। उन दरखास्तों के साथ वो एफिडेविट भी देंगे कि उनका ताल्लुक किसी कुल अदम जमात से नहीं है। और उसके बाद 20 जुलाई की डेट गुजरने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग में उसे रखा जाता है। उसमें तमाम इंटेलिजेंस के महकमे भी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर पुलिस। इजाजत लेने के लिए 20 तारीख तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। आसिम सिद्दीक आप अब तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। पंजाब भर के CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। इतवार के रोज CNG स्टेशन को दोबारा गैस फराहम की जा सकेगी। खबर दे रहे हैं आपको, पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। पंजाब भर के CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। इतवार के रोज CNG स्टेशन को दोबारा गैस फराहम की जा सकेगी। आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी के स्पेशल ऑपरेशंस जारी। मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म। जनूबी पंजाब के अजला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 6 फूड पॉइंट सील, 90,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। आपको बता रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी के स्पेशल ऑपरेशंस जारी। मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म है। जनूबी पंजाब के अजला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां की गई। और रहीमिया खान के खस्ता हाल स्कूलों के लिए अच्छी खबर है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर के अजला के लिए सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती स्कीमों के लिए सालाना फंड्स जारी कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही आमिर भट्टी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब भर के तमाम अजला की जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको तरक्याती स्कीमों के हवाले से सालाना फंड्स जारी कर दिया। और इस हवाले से अगर फंड्स की बात की जाए तो पंजाब भर के तमाम अजला में जिसमें सबसे ज़्यादा फंड्स मिले हैं वो रहीमिया खान के। रहीमिया खान पंजाब भर के अजला में तरक्याती स्कीमों में फंड हासिल करने वाला एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फंड हासिल करने वाले ज़िले में सबसे पहले नंबर पर आ गया है। इस हवाले से अगर बात की जाए जो इनफरादी तौर पे तो वो ये होती है कि रहीमिया खान में जो एडिशनल क्लास रूम्स हैं उनके लिए 5.8 फंड्स, इसके साथ साथ जो है मिलियन, और इसके साथ मिसिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए 10 मिलियन, और इसके साथ साथ जो डेंजरस बिल्डिंग है उनकी दोबारा सालाना फंड्स जारी कर दिए गए हैं। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की दरखास्त पर NHA ने मुजफ्फरगढ़ की राबिता सड़कों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। इसी बारे में मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर कहिएगा, फंड्स जारी हो गए हैं, कब काम शुरू होगा? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की रिक्वेस्ट पर NHA ने 4 करोड़ रुपए से जायद के फंड जो वो जारी कर दिए। मुजफ्फरगढ़ में सड़कों की मेंटेनेंस पर ये फंड जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें
मुजफ्फरगढ़ की मुख्तलिफ शाहराएं जो वो शामिल है, खासकर तलीरी बाईपास से जो किनवान चौक तक का रास्ता है उसकी जो मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की मरम्मत की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर रोड की मरम्मत की जाएगी। इस हवाले से शहरियों की जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ की कई राब्ता सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं, कई अरसे से इनकी जानिब तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही थी। जिला इंतजामिया जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनकी जानिब तवज्जो दी जाएगी। आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट मुल्तान लाखों सारिफिन को स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स फीस वसूल करने के बावजूद जारी न कर सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, मुल्तान एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर शहरियों को इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दावे किए गए थे कि एक्साइज डिपार्टमेंट में जो कार्ड सिस्टम है उसको लॉन्च किया जाएगा रजिस्ट्रेशन कापियों के हवाले से, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सारिफिन अपनी फीस जमा करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कार्ड वसूल नहीं हुआ। और उसके साथ साथ तकरीबन अगर हम नंबर प्लेट्स की बात करें तो साल 2018 से लेकर अब साल 2020 चल रहा है, अभी तक एक नंबर प्लेट भी यहाँ पर नहीं पहुंची जो कि शहरियों को फराहम की जा सकी हो। अभी तक तकरीबन 5 सीरियल्स की नंबर प्लेट्स का जो था जहाँ पर सीरियल जारी की गई, लोगों को नंबर इशू की गया, लेकिन अगर नंबर प्लेट्स की बात करें तो तकरीबन 2.5 लाख महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स फराहम नहीं कर सका। बिलाल न्याजी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हुए आरोप करेंगे मियावाली का, जहां के नवाही इलाके वांढा गड्डी खैलावाली का ट्रांसफार्मर खराब हो गया। गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली बहाल न होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बंदिश के बायस मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि 600 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल आबादी को एक ही ट्रांसफार्मर से बिजली फराहम की जाती है। लोड जायद होने की वजह से ट्रांसफार्मर अक्सर खराब हो जाता है। मकीनों ने फेस्को हुकाम से मुतालबा किया है कि इलाके की बिजली फौरी तौर पर बहाल की जाए। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि बहावलपुर में फंड्स की कमी के बाद सफाई कंपनी की कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगी। कंपनी की जानिब से मुलाजमीन से ओवर टाइम लेना बंद कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। जी बिल्कुल, बहावलपुर अगर हम बाकी दिनों की बात करते हैं जो वर्किंग डेज कहलाते हैं, तब तो सफाई सुथराई यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन जो इतवार का दिन होता है और ख़ासतौर पर जो इतवार की शाम होती है, तब बहावलपुर की जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर कचरा देखने को मिलता है और अंदरून शहर जो है इस हवाले से काफ़ी बदनाम भी दिखाई देता है और नज़र भी आता है कि वहाँ पर कचरे की बहुतात होती है। तो आखिर वजह क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इतवार वाले दिन अपना ऑपरेशन जारी क्यों नहीं रखती? सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। कांजू साहब बताइएगा, क्या मामला है? आखिर आपकी एफिशिएंसी कम होती चली जा रही है डे बाय डे। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले बात तो आपने की संडे के हवाले से, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर देखें, लेबर लॉज भी देखें कि जो बंदा 6 दिन काम करता है उसे 1 दिन का रेस्ट लास्ट भी है। और सेम पॉलिसी जैसे चल रही है हम लोग भी अडॉप्ट करते हैं कि 6 दिन अगर हमारे वर्कर काम करते हैं तो 1 दिन का उनका रेस्ट बनता है। बाकी जहाँ तक बात है कि नो डाउट संडे को हमारी वर्किंग नहीं होती, लेकिन हमारी जो हेल्पलाइन है 1139 वो 24 घंटे चल रही होती है। अगर किसी को इशू होता है कूड़े से रिलेटेड तो 1139 के ऊपर कॉल करके हमें बताता है। हमारा एक इमरजेंसी स्क्वाड संडे को भी अवेलेबल होता है, तो वो फौरी तौर के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करता है उसको। ये बताइएगा, जो आपका कमी के बायस सफाई कंपनी की कारकर्दगी मुतासिर होने लगी है। तैयब सैफ, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में महकमा वाइल्ड लाइफ की बड़ी कार्रवाई, चोलिस्तान से शिकार किए गए 5 नायाब हिरन बरामद, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान नायाब हिरनों के शिकार और खरीदो फरोख्त में मुलविस थे। बरामद होने वाले नायाब हिरनों को वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान में महकमा वाइल्ड लाइफ की बड़ी कार्रवाई, चोलिस्तान से शिकार किए गए 5 नायाब हिरन बरामद कर लिए गए। अलीपुर ताजरों का पुलिस थाना सिटी पुलिस के खिलाफ एहतजाज, लाखों रुपए की चोरी में मुलजिमान से बरामद शुदा कपड़ा वापस नहीं लिया गया। ताजरों ने शदीद एहतजाज करते हुए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना इमरान सईदी। बिल्कुल जी, आज जो है अलीपुर की ताजर बिरादरी मकामी पुलिस थाना सिटी अलीपुर के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है।
गुज़िश्ता दिनों जो है यहाँ पर कपड़े की एक दुकान थी, वहाँ से जो है 21 लाख रुपए की चोरी हुई थी। चोर जो है कपड़ा चुरा कर ले गए थे। उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरों की मदद के जरिए जो है चोरों को ट्रेस किया गया, उनसे जो है माल भी बरामद कर लिया गया। यहाँ जो ताजर मौजूद हैं, इन्होंने जो है मकामी पुलिस पर जो है इल्ज़ाम लगाया है। इनका कहना है कि भी जो हमारा कपड़ा बरामद हुआ था वो जो है पुलिस ने हमें वापस नहीं किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भी थाना सिटी अलीपुर में से जो रिकवर हुआ कपड़ा था वो चोरी हो गया। जब पुलिस ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पुलिस की जो है अजीब मंतक सामने आई। इनकी जो दुकान है यहाँ से लोडेड रक्शों पर जो है दुकान से वो कपड़ा उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है दिखाया गया। पुलिस ने अपनी फर्जी जो है कारकर्दगी जो है वो आला अफसरान को दिखाई। यहाँ आज जो है एहतजाज किया जा रहा है। इनसे जानते हैं, बाबा जी बताइएगा कितना माल चोरी हुआ था, कितनी बरामदगी हुई और आज का एहतजाज करने का क्या मकसद है? ये जी जो बरामदी हुई है ना, इन्होंने तकरीबन रात को छापे लगाए थे। 5-4 जो मुजरम थे, जो जी को पहले पकड़ा था तो उसने बताया था भी फलां शख्स को मैंने कपड़े दिए हुए थे। फिर पुलिस वाले गए, हम भी साथ गए तो किसी से 20 सूट, कहीं से 40 सूट बरामद हुए थे। तो सुबह जो है ना हमने थाने में वो रख दिए, तो खुशी के मारे हम वापसी आ गए। चलो अच्छी कारकर्दगी हुई है पुलिस ने। बाबा जी टोटल कितने सूट ताजिर सरापा एहतजाज है। राना इमरान सईदी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एफबीआर ने रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान और बहावलपुर समेत मुल्क भर से 29 स्टेनोटाइपिस्ट को असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक 29 स्टेनोटाइपिस्ट हैं जिनको असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई है, यानी कि इनको 16वें ग्रेड का ऑफिसर बना दिया गया है। इसमें बहावलपुर और रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से भी मुलाजमीन शामिल हैं। इसके अलावा पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और कराची, हैदराबाद, सरगोदा के लोग भी इसमें शामिल हैं। अब जो मुल्तान से जिसका नाम शामिल है वो जिया रसूल हैं, जिनको 14वें स्केल से स्टेनोटाइपिस्ट से 16वें स्केल का ऑफिसर बना दिया है। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर इसको तैनात कर दिया है। उसके बाद जो बहावलपुर से हैं उसमें सईद अहमद हैं, उसके बाद मोहम्मद अहमद हैं, इनको जो है वो तरक्की दे दी गई है। 29 मुलाजमीन को तरक्की दे दी गई है। इकबाल सादिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल से बहावलपुर के मुंतखब MPAs की मुलाकात। उच्च शरीफ से मुंतखब MPA सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी और यजमान से मुंतखब MPAs डॉक्टर अफजल अराई और चौधरी एहसान उल हक ने मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने MPAs से तरक्याती कामों में ताउन का यकीन दिलाया। तो खबर आपको दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल से बहावलपुर के मुंतखब MPAs की मुलाकात। उच्च शरीफ से मुंतखब MPA सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी और यजमान से मुंतखब MPAs डॉक्टर अफजल अराई और चौधरी एहसान उल हक ने मुलाकातें की हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्तान में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस का शिकार। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की जल्द सेहतियाबी के लिए बकरों का सदका दिया गया। बकरों का सदका सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह की जानिब से दिया गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद बताएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस का शिकार हैं, जबकि सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह की जानिब से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जल्द सेहतयाबी के लिए बकरों का सदका दिया गया है और उनके लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। सब हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। शाह जी, वजीर खारजा से मोहब्बत की एक इजहार है कि उनके लिए सदके भी दिए जा रहे हैं कि जल्द सेहतयाब हो, क्या कहेंगे? तो सदका तो अल्लाह पाक की ज़ात का पसंदीदा फेल है जो हम इंसान करते हैं, हम मुसलमान करते हैं और दुआएं की जा रही हैं। और हमने भी ये दुआ की अल्लाह पाक की पाक ज़ात मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब को और उनके फरजान मखदूमज़ादा ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब को सेहत दे और वो अपना काम जो अवाम की खिदमत का वो कर रहे हैं उसी में मशगूल हो जाएं। और वो इस मामले में मुझे उम्मीद है कि शाह साहब भी जल्दी में होंगे कि मैं जल्दी जल्दी लोगों में जाऊँ और पाकिस्तान के मामलात और अपनी हल्के के मामलात जल्दी जल्दी संभालूं। हमारी दुआ है और उम्मीद है अल्लाह का पाक की पाकज़ात से कि वो बहुत जल्द हमारे साथ उसी तरह हल्कों में भी होंगे और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको भी उसी तरह वो सर अंजाम देंगे जिस तरह वो दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जल्द सेहतयाबी। वज़ीर खारिजा की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई है। जुनैद अनवर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही अली रियाज।
بالکل پاکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے مونسون شجرکاری مہم جو ہے اس کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں سب موجود ہوں ملتان کے شاہ شمس پارک کی نرسری میں, اور یہاں پر جو ہے جو پہلے جو درخت ہیں 100 درخت وہ یہاں پر آ گئے ہیں. یعنی کہ اس بار جو شجرکاری مہم جو ہوگی اس میں صرف اور صرف بڑے درخت لگائے جائیں گے جو کہ 10 سے 12 فٹ کے ہوں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ اس مہم میں اس بار جو کہ بھی اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا کتنے درخت لگائے جائیں گے, کہاں کہاں لگائے جائیں گے, کون کون سے درخت ہوں گے. تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں میرے چیئرمین پی ایچ اے موجود سر بتائے گا کتنے درخت کہاں کہاں اور کون کون سے درخت لگائے جائیں گے. یہ ابھی مونسون کا موسم شروع ہونے والا ہے تو ہم نے اس کی تیاری کے لیے شروع کر دیا ہے. جو ملتان کے مخیر حضرات ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے. ہم لگا رہے ہیں, یہ شاہ شمس پارک میں اترے ہیں, یہ پلکن کے ہیں, اس میں املتاس ہیں, اس میں سکھ چین ہے, اس میں گولڈ مور ہوگا, اس میں کچنار ہوگا, مختلف ہم ملتان شجرکاری میں مہم کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. علی ریاض آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ڈی پی او بہاولپور محمد صہیب اشرف کے احکامات پر ضلع بھر میں اشتہاری مجرموں کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے محمد امین سے. امین بتائے گا. جی بالکل, اشتہاری ملزم کسی بھی ضلع میں ہو وہ مقامی تھانے اور پولیس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے اس کو گرفتار کرنا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا. تو بہاولپور میں بھی ڈی پی او محمد صہیب اشرف نے چارج سنبھالا تو انہوں نے اشتہاری مجرموں کے خلاف جو ہے خصوصی مہم شروع کی. آج تک جو ہے ضلع بھر سے اس مہم کے تحت کتنے اے کیٹیگری کے بی کیٹیگری کے اشتہاری گرفتار ان سے جانتے. سر بتائیے گا, اشتہاری ملزمان کے خلاف آپ نے خصوصی مہم شروع کی تھی, آج تک جو ہے ضلع بھر کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ پچھلے 6 ماہ کے دوران جو ہے ٹوٹل 2000 اشتہاری جو ہیں اے اور بی کیٹیگری کے وہ گرفتار کیے گئے ہیں. ان میں سے 165 جو ہیں وہ اے کیٹیگری کے ہیں اور تقریباً 1820 جو ہیں وہ بی کیٹیگری کے ہیں. اے کیٹیگری کے اشتہاری جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہمارے قتل, رازنی, ڈکیتی, اغوا برائے تاوان کے ہوتے ہیں. تو اس میں ماشاءاللہ پوری پولیس فورس کی جو ڈپارٹمنٹ کے تمام تھانوں کی محنت کی وجہ سے 165 اشتہاری اے کیٹیگری گرفتار ہوئے ہیں, جن میں تقریباً 110 جو ہیں وہ رازنی کے ہیں, 25 جو ہیں وہ ڈکیتی کے ہیں, 25 جو ہیں وہ قتل کے ہیں اور 5 ہیں اغوا برائے تاوان کے. اس میں خاص طور پہ یہاں پہ یہ بات بھی مینشن کرنی ضروری ہے کہ اس میں اس کیمپین کے دوران اشتہاری جو کہ 20 25 سال سے اشتہاری چلے آ رہے تھے قتل کے معاملات میں, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا. ضلع بہاولپور میں اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے مہم جاری ہے. بہت شکریہ محمد امین, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی عالمی یوم بہبود آبادی منایا جا رہا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ بہبود آبادی بہاولپور محمد ادریس کہتے ہیں کہ محکمے کی کاوشوں سے پنجاب میں آبادی کافی حد تک کنٹرول ہوئی. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اطہر اشاری. جی بالکل ایسے کہ آج بہبود آبادی کا عالمی دن ہے اور اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر بہبود آبادی بہاولپور محمد ادریس صاحب. ادریس بھی بتائیے گا کس طرح کی آگاہی مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے, روٹین میں کیا صورتحال ہے, خاص طور پر دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج عالمی یوم آبادی منایا جاتا ہے. 1987 سے اقوام متحدہ کی اپیل پر یہ دن ہر سال 11 جولائی کو منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بڑھتی ہوئی آبادی سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے آگاہ کیا جائے. بہاولپور ضلع کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ بہاولپور ضلع میں محکمہ بہبود آبادی کے کو 76 کے قریب فلاحی مراکز بہبود آبادی ہیں, جہاں 5 افراد کا عملہ ہوتا ہے اور جو لوگ فلاحی مراکز میں آتے ہیں فیملی پلاننگ کی سہولیات کے سلسلے میں تو ان کو مفت سہولیات دی جاتی ہیں اور ان سے کوئی قیمت نہیں لی جاتی. مفت مشورے دیے جاتے ہیں اور ان کو فیملی پلاننگ کے مختلف طریقے اگر وہ اختیار کرنا چاہیں تو ان کی سروسز بھی دی جاتی ہیں. پاکستان میں بھی عالمی یوم بہبود آبادی منایا جا رہا ہے. اطہر اشاری آپ بہاولپور سے اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. رخ کریں گے لیا کا, جہاں ورلڈ پاپولیشن ڈے پر محکمہ بہبود آبادی لیا میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد سرفراز. آج جو ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے. اس وجہ سے محکمہ بہبود آبادی لیا دفتر کے اندر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس کے اندر معاون خصوصی وزیر پنجاب رفاقت علی گیلانی اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر افیسر خواجہ محسن رسول نے جو ہے شرکاء کو آبادی کے حوالے سے اور آبادی کی حفاظت آبادی کو کم کرنے کے حوالے سے جو یہاں پر شرکاء موجود تھے ان کو اس بارے آگاہ کیا. رفاقت علی گیلانی صاحب سے بات کرتے ہیں. گیلانی صاحب آج کی میٹنگ کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب پاپولیشن افسر ہیں ہمارے خواجہ محسن رسول صاحب, انہوں نے ہمیں آج جو ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے اس پہ اسپیشلی انوائٹ کیا ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. تو آج کا جو دن یہ منایا جا رہا ہے اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے پوری دنیا کے اندر آبادی بڑی تیزی سے اور خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور بڑھ رہی ہے, تو اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے
और उन्हें ये बताना है कि तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं वो तब ही तरक्की याफ्ता बन सकती हैं जब आबादी पे उनका कंट्रोल होगा। तो आबादी पे कंट्रोल करना ये हमारे ख़ास तौर पे हमारे इस खित्ता के लिए, ख़ास तौर पे हमारे इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस हवाले से आज ये अवेयरनेस दी जा रही है। आबादी अगर कंट्रोल में होगी तो हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, आबादी लोगों को आगाही देना जरूरी है। जाहिर सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बात करेंगे मौसम की। सखी सरवर में सख्त गर्मी का जोर टूट गया। गरज चमक के साथ होने वाली बारिशों से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मौसम की अली रज़ा मूसा। जी बिल्कुल, सखी सरवर और कबायली इलाकों का जो मौसम है इंतहाई खूबसूरत, प्यारा, दिलकश और सुहाना हो गया है। अभी भी जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह से लेकर दोपहर तक जो थी शदीद हबस और गर्मी थी, जिसकी वजह से शहरी जो है ना वो शदीद परेशानी में मुबतला थे। लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो गई है इन दिनों में, तो शहरी जो थे वो खुदा से दुआएं मांग रहे थे अब्र रहमत की। जो अब अब्र रहमत जो है वो बरस रही है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों, राखी मुंह, राखी गाज, सीरी और दीगर इलाकों में भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। सखी सरवर में भी गरज चमक के साथ जो बारिश का वो सिलसिला जो है वो जारी है। आसमान पर काले बादलों ने बसेरा डाला हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे जो है गर्मी का जोर टूट गया है। शहरियों के जो गर्मी की वजह से मुरझाए हुए चेहरे थे वो भी खिल उठे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे दिसंबर की हवाएं जो है वो चल रही हूँ, साथ साथ बारिश भी हो रही। तो मैं भी इस खुशगवार मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हबस और गर्मी की वजह से बाहर ही इंसान नहीं निकल पा रहा था। तो इस वजह से जो शहरी जो थे वो घरों में ही थे। मगर अब जो है ना अब्र रहमत बरस रही है, गर्मी का जोर टूट गया है। मैं भी इस खुशगवार मौसम को खूब एंजॉय कर रहा हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कोस सुलेमान और दीगर इलाकों की तरफ निकल रहे हैं, बारिश में नहा रहे हैं। जी, सखी सरवर में सख्त गर्मी का जोर टूट गया है। गरज चमक के साथ होने वाली बारिशों से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। आसमान पर गहरे स्याह बादलों का राज है। आप हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अली मूसा रजा बता रहे थे कि मौसम बहुत ही खुशगवार है। सखी सरवर में सख्त गर्मी का जोर टूट गया है। जी हाँ, गरज चमक के साथ होने वाली बारिशों से मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो गया है। आपको बता रहे हैं मौसम के हवाले से, जहां गर्मी का ज्यादा जोर था वहीं पर मौसम आज खुशगवार हो गया है। दूसरी जानिब कैरोड़ पक्का में मौसम की बात की जाए तो कैरोड़ पक्का में गुज़िश्ता एक हफ्ते से सूरज आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे आशिक हुसैन से। आशिक बताएगा कैसा मौसम है यहाँ पर। जी बिल्कुल, बात की जाए गर्मी की तो गुज़श्ता कई रोज़ से जो है करोड़ पक्का में सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है ऐसे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है उन्होंने ट्यूबवेल का जो है वो रुख कर लिया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी जो है आए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 43 से 44 सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुँच चुका है। मजीद यहाँ पर जो है नौजवान जो है आए हुए हैं नहाने के लिए, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। जी, गर्मी की शिद्दत बहुत है, तो गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए हम यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं और मैंगो पार्टी भी मना रहे हैं। जी, जैसे कि शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए दोस्तों के साथ यहाँ पर नहाने के लिए आए। मेरे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, किस तरह गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। जी, हमारे शहर में 43 डिग्री पर गर्मी है और सूरज की तपश भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे घर हम के कमरे बहुत ज़्यादा तपश में हैं। और हमने ये सुना है कि ये पानी में कोरोना रहता भी नहीं है। हमने कहा चलो इंजॉय का इंजॉय होगा, दोस्तों के साथ गैदरिंग होगी। नौजवान गर्मी को खूब एंजॉय कर रहे हैं। आशिक हुसैन आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोट अदू में थैलेसीमिया मर्ज के बच्चों को ब्लड फराहम करने के लिए उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्लड कलेक्ट किया गया है। नौजवान बड़ी तादाद में ब्लड का अतिया देने कैंप पहुंच गए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं तैमूर अतहर। जी बिल्कुल, कोट अदू में उम्मीद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्लड कलेक्शन कैंप लगाया गया है, जिसमें ये मुख्तलिफ जो नौजवान हैं वो यहाँ पर आके अपना ब्लड देते हैं। और ये ब्लड थैलेसीमिया के पूरे जनूबी पंजाब में जो मराकज़ हैं जहाँ पर बच्चों का इलाज जारी है उनको फराहम किया जाता है। इस वक्त ये कैंप में जो कोट अदू के नौजवान हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज ये कैंप लगाया कि इसका मकसद क्या है और अब तक कितने नौजवान हैं जो अपना ये ब्लड दे चुके हैं और ये ब्लड कहाँ जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त में ज़रूरत इसकी ज़्यादा थी, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पहले खुली होती थी, वहाँ कैंप लगते थे, वहाँ पर से जो ब्लड था वो डोनेट होता था, तो ज़रूरत काफ़ी हद तक पूरी होती थी।
तो लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, तो वहाँ पर ब्लड डोनेशन जो कैंप होते थे वो नहीं लग पा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत थी कि हम एक कदम और आगे बढ़ाकर अवाम उन्नास में इस बात के लिए लोगों में शऊर उजागर करें। तो एक बड़ा मकसद था कि हम उन लोगों की आवाज़ बन पाएँ और उन लोगों के दुखों का मदावा बन पाएँ जिन लोगों को इस मर्ज ने कमज़ोर किया हुआ और परेशान किया हुआ। थैलेसीमिया की बीमारी के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए हमने ये कैंप का इनेकाद किया। और इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्लड कलेक्ट कैंप लगाया गया है। बहुत शुक्रिया तैमूर अथर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए